So, hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel. This is Learning with Ganesh, and especially this video is for class 8. As all of you know, that from this year you are just having your board exams in the pattern of multiple choice questions. So, for practicing that lesson by lesson, I have made few questions in the MCQ pattern. So, today I'm just giving you some few 20 questions from the lesson microorganisms. So please be students, be with your copy, be with your pen, watch the video very carefully, copy all the questions in your copy, and I'll try to answer it because I am just giving you along with the answers, and the next day I'm just going to see you how many of you have done. So once again, you just watch because this will make you more perfect in your subject so that it will be easy for you to give the forthcoming examinations very easily. So all the best. So here this time I have chosen you from the science one chapter, from the science chapter, that is microorganism. So microorganisms, from that I'm just giving you 20 questions. All questions are in multiple choice round. So here is the question number 1. So this is question number 1. Alcohol is produced with the help of. So here you see there are 4 options out of this. One is correct answer. So you will be provided a OMR sheet. OMR sheet will be like that. For question number 1, there are 4 circles. Circle number 1, here it is A. Circle number 2, B. Circle number 3, C. And circle number 4, D. Suppose the first one, whatever the right answer may be A or B or C or D. So for first one, suppose B is right answer, you have to encircle the B option with completely dark pen or pencil very neatly. So like this you have to answer, because this is the pattern of OMR where you have to write the answer like this. Okay, now we will say like that 40 questions will be there. 40 this types of circles will be there. For each question there are 4 circles with 4 options. Whatever the right answer is there, suppose B is the right answer, so in question number 1, the B circle you have to encircle it with full completely black pen or pencil very neatly. Okay, now you see first one is alcohol is produced. So alcohol is produced with the help of what? A. Sodium chloride, B. Yeast, C. Nitrogen, D. Carbon dioxide. So the correct answer is B. So you have to make it B. But in the copy, you have to write like this, and in the B, you have to just tick, or you write the answer separately. Answer B, yeast. Like that you can practice it. But while giving examinations, you have to circle it, the B circle like this. Okay. Now come to question number 2. Which of the following drug is an antipyretic? Antipyretic. Which of the drug is antipyretic? Number A option is insulin, B alcohol, streptomycin, paracetamol. So the correct answer is paracetamol. D is the answer. Okay, D. Now, where are microorganisms found? Microorganisms का कहाँ पाए जाते हैं? वाटर में, एयर में, सॉइल में, या इन सभी में. So microorganisms are those organisms which are found in anywhere. It can be found in water, it can be found in air, or it can be found in soil. So obviously the correct option answer is all of this, because microorganisms are found even in your body also. Okay. Now next question. Which bacteria changes milk into curd? जब दूध से दही बनता है, certain bacteria which are very useful for the mankind, तो दूध से जब दही बनता है उसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? वायरस, मोल्डिंग, लैक्टोबैसिलस या एंटीबायोटिक. सो फोर्थ का आंसर है लैक्टोबैसिलस. नाउ विच कॉजेज मलेरिया डिजीज? मलेरिया किसके काटने से होता है? स्पाइडर से,
या मॉस्किटो से, या बी से, या हाउस फ्लाई से? तो इसका आंसर है मॉस्किटो, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ what helps in the rise of bread or dosa dough? देखिए, ब्रेड बनाने वक्त या डोसा बनाने वक्त जो आटा होता है, जो गूंदा जाता है, उसको कुछ देर छोड़ दिया जाता है और उसमें कुछ डालने से उस क्या होता है कि कुछ देर बाद वो फूल जाता है। फूल के देखिए कि डोसा ब्रेड एकदम नरम होते हैं। वो नरम किसके वजह से हुआ? जस्ट क्या हीट करने से हुआ, या अच्छे से ग्राइंड का मतलब होता है पीसने से हुआ, क्योंकि उसमें सर्टेन ईस्ट सेल्स होते हैं, उसकी ग्रोथ से हुआ, या लो प्रेशर फ्रिज में वगैरह रखने से हुआ? तो इसका आंसर होता है ग्रोथ ऑफ ईस्ट के वजह से उसमें फर्मेंटेशन होता है, जिससे ब्रेड डोसा बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ओके, बैक्टीरिया कई शेप के होते हैं, रॉड शेप, लॉन्ग शेप वगैरह। जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड, इन रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को किस नाम से जाना जाता है? क्या बैसिलस, या कोकुस, या वाइब्रियो, या स्पाइरलम? तो इसमें आपका आंसर है बैसिलस जो बैक्टीरिया है रॉड शेप में पाया जाता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। Now this is question number 8. Bacteria present in the root nodules of pea. चने के पेड़ के जो जड़ होते हैं, जड़े के नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं, ताकि मिट्टी और सॉइल को और फर्टाइल बनाते हैं। इसमें से कौन सा बैक्टीरिया? क्या कोली, या प्लाज्मोडियम, या राइजोबियम, या पेनिसिलिन? तो आंसर है राइजोबियम। तो राइजोबियम से जो जड़ में पकड़ते ही ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा सॉइल को और फर्टाइल बनाते हैं। इसीलिए कुछ प्लांट्स, इस तरह के प्लांट्स को फार्मरों का हितैषी, फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है, क्योंकि फार्मर को अच्छी ज़मीन चाहिए, अच्छी मिट्टी चाहिए, वो इसके वजह से होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स क्लोरोफिल। देखिए, सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें क्लोरोफिल होता है वो अपना खाना खुद बना लेता है फोटोसिंथेसिस के जरिए। इसमें कौन सा है? वायरस है, फंगस है, एल्गी है, कि सभी है? तो इसमें से कौन सा आंसर है? एल्गी एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोफिल होता है और जो अपना खाना खुद बना लेता है। द डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इससे कौन सी बीमारी अधिकतर फैलती है? क्या ट्यूबरकुलोसिस, जिसको जनरली हम कहते हैं टीबी हो गया, या पोलियो, या टाइफाइड, या मलेरिया? इसका आंसर है मलेरिया। विच कैनॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल में कौन सा चीज़ है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स नहीं करते हैं? क्या राइजोबियम है ना, क्लॉस्ट्रीडियम, या एजोटोबैक्टर, या पेनिसिलिन? ऑब्वियसली पेनिसिलिन एक किस्म की दवाई है, ये नहीं करता है। तो डी इसका आंसर सही है। विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज एड्स? एड्स एक बहुत भयंकर बीमारी है ना? इसको मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। किस बैक्टीरिया से ये होता है? क्या प्रोटोजोआ से, या बैक्टीरिया से, या वायरस से, एल्गी से? तो डेफिनेटली वायरस से होगा। तो वायरस से ही एड्स की बीमारी फैलती है एक से दूसरे को। अब देखिए, कॉलेरा, चिकन पॉक्स आर सम वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीज। ये देखिए, कॉलेरा, चिकन पॉक्स, ये किस किस्म की बीमारियां हैं? क्या कम्युनिकेबल है, या नॉन कम्युनिकेबल है, या एक्यूट है, या क्रोनिक है? तो जनरली ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्योंकि किसी एक को आएगी तो उसके संपर्क में जो भी रहेगा उसको भी ये बीमारी फैलेगी। तो इसलिए इसको, जो बीमारियां एक से दूसरे को फैलती है उनको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। विच एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे पहला दवाई एंटीबायोटिक क्या निकला? क्या पेनिसिलिन निकला, या स्टेप्रोमाइसिन निकला,
या टेट्रासिलिन निकला या इनमें से कोई भी पहली बार नहीं निकला। तो इसका आंसर है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन सबसे पहली दवाई है जो उसको निकाली गई है। नाउ 15, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट इनमें से कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे छोटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो आंसर है वायरस। वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ना पूरी तरह से लिविंग बीइंग है ना पूरी तरह से नॉन लिविंग बीइंग है। केवल इनकी संख्या रिप्रोडक्शन बहुत अधिक होती है, बल्कि उसी कैटेगरी में ये लिविंग है, बाद बाकी सारे कैरेक्टर्स इसके नॉन लिविंग बीइंग के होते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इनमें से किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी? क्या एडवर्ड जेनर ने, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या लुइस पैस्चर ने, या रॉबर्ट कोच ने? तो इसका आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। The organisms which we can see through our naked eye। ऑर्गेनिज्म होते ही ऐसे जो अपने आँख से नहीं दिखते हैं, उसके लिए हमको स्पेशल माइक्रोस्कोप वगैरह की दरकार होती है, बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम खुली आँख से देख सकते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिसको हम खुली आँख से देख सकते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, या मैक्रो कहेंगे, या वायरस कहेंगे, या एल्गी कहेंगे? एल्गी भी ऑफ कोर्स दिखता है, बट ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। माइक्रो मतलब इतने छोटे जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप जरूरत पड़ती है। सो ऑब्वियसली बी इसका करेक्ट आंसर है। एल्गी किस रंग में पाए जाते हैं? एल्गीज आर मोस्टली डैश इन कलर। क्या रेड में होते हैं, या ग्रीन में होते हैं, या ब्राउन में होते हैं? जनरली देखिए कुछ जगह रेड में भी होते हैं, ग्रीन में भी होते हैं, ब्राउन में भी होते हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज, ये सभी कलर में प्राय जगह देखकर अपने रंग में मिलते हैं। अभी जस्ट आपको बताया वायरस क्या है। व्हाट इज वायरस? क्या ये लिविंग बीइंग है पूरी तरह, या नॉन लिविंग है पूरी तरह, या बोथ है, लिविंग बीइंग भी है नॉन लिविंग बीइंग भी है, या कुछ भी नहीं है? तो इसका आंसर होगा बोथ, लिविंग बीइंग भी है नॉन लिविंग बीइंग भी है। सारे कैरेक्टर्स नॉन लिविंग बीइंग के होते हैं, एक ही कैरेक्टर लिविंग बीइंग का होता है, वो है रिप्रोडक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 19 था। तो आइए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स। इनमें से क्या डालने से खाना, जैसे कुछ चीज़ डालते हैं जिससे खाना बहुत सुरक्षित होता है, काफ़ी दिनों तक चलता है। कोई लोग सॉल्ट डालते हैं अचार वगैरह में, जो लंबे समय तक अचार ख़राब नहीं होती है। कुछ लोग चीनी डाल देते हैं, शुगर डालते हैं, इससे भी कई दिनों तक आपका वो फूड प्रिजर्व रहता है। कोई लोग विनेगर में भी फूड को प्रिजर्व करते हैं, लेकिन मीथेन गैस में फूड प्रिजर्व नहीं रहता है। ओके, मीथेन एक गैस है जिससे फूड प्रिजर्व नहीं रहता। तो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। तो ऑब्वियसली आंसर है मीथेन। सो नाउ that's all in this video, because there are total 20 questions are there. Some more questions are there, but I'm just giving you 20 questions in each lesson. So all of you are requested to please copy it down all the 20 questions and practice it whenever you get time. Either you by copying it, so it is one way to test yourself, is that watch my video very carefully 2 to 3 times and copy the questions on only, and also copy the options also. Close the video, learn and read the question very carefully and try to answer it yourself, and later you check that one. So if you got 20 out of 20, so you are in an excellent position, so that I am sure that you may get more than 95% in the coming board examinations. So all the best. Till then, goodbye. We will see you in the another video with another lesson in the same manner. Till then, bye.